आनंद आनंद। आज मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा। टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हाँ, so what happened? Once a saint, a rishi, was going to heaven. So on his way, he sees Kalpa Vriksha, the tree of imagination. It came out while the churning of the ocean. It's a long story. It has a background story, nice background story. So he comes, encounters the tree of imagination, Kalpavriksha. He looks at it and says that this is a nice place to rest. I can sleep here. And suddenly a bed appears. Very beautiful bed appears. Royal bed appears. And he goes and sits. And he thinks, but sleeping hungry doesn't make sense, right? It would have been nice to have some good food. And suddenly a big plate of nice food appeared. And exactly the one he likes. What he enjoys eating, that food appears. Suddenly, immediately. He's like, wow. Then he eats the food and sleeps. तो एक बार क्या होता है, एक ऋषि होते हैं, वो स्वर्ग जा रहे होते हैं। उनको रास्ते में कल्प वृक्ष मिलता है। तो कल्प वृक्ष तो हम जानते हैं, सागर मंथन से जो निकला था। तो वो वहां आते हैं और वो बोलते हैं, अरे बहुत अच्छी जगह है आराम करने के लिए। काश यहाँ एक पलंग होता, एक बेड होता। तो तुरंत वहां पे एक रॉयल बेड आ गया, राजा वाला बेड, बड़ा मस्त बेड। देख के बड़ा खुश हो गया, बोला वाव। यहाँ पे अगर थोड़ा खाना भी मिल जाता तो बात ही अलग होती। और उसको 56 भोग मिल गए और वही खाना जो उसे पसंद है। और वो गया, बड़ा खुश हो गया, उसने खाना खाया भरपेट और फिर मस्त संतुष्ट होके सो गया। सो ही एट दैट फूड and then slept content. And next morning he woke up, and then that logical mind started entering, and he was like, oh, I thought of a bed and the bed appeared. I thought of food and the food appeared. This seems like some demonic energy, some demonic energy field which is making me delusional. So he thought that maybe now two demons will come. They'll tie my hands, they'll tie my legs, they'll put cloth in my mouth and take me away. And you know what happened? Yes. Two demons came, tied his hands, tied his legs, put some cloth in his mouth and took him away. फिर ऋषि जी मस्त आराम से सो के दूसरे दिन सुबह उठे। उठकर उनका ये जो वाला जो शंका वाला मन होता है, इंटेलिजेंट बुद्धिशाली वाला मन, जो दिमाग होता है, वो जग गया। उसने बोला, मैंने खाने के बारे में सोचा, खाना आ गया, उससे पहले बेड के बारे में सोचा, बेड आ गया। ये तो कोई मायावी जगह लगती है। जैसे कोई असुर है जो ये माया मुझ पे कर रहा है। तो क्या करे? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि अभी दो असुर आएंगे, मेरे हाथ बांध देंगे, मेरे पैर बांध देंगे, मेरे मुंह में कपड़ा डाल देंगे और उठाकर लेकर जाएंगे। और क्या होता है पता है? सोचो, दो असुर आते हैं, उसके हाथ बांधते हैं, उसके पैर बांधते हैं, मुंह में कपड़ा डालते हैं और उठाकर लेके जाते हैं। तो हमारे जीवन में जो भी घटा है, जो भी घट रहा है और जो भी घटेगा आगे जाके, वो कहीं ना कहीं हमने ही सोचा हुआ है। और ये जो दिलचस्प कहानी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, वो कुछ और नहीं है, आपका ही जीवन है जो आप ही लिख रहे हो। So whatever happened in your life, whatever is happening right now in your life, and whatever will happen in your life, everything is written by you. You have thought of it and you have manifested it. So the interesting story that I was about to say is your life, which you are writing, by the way. And for anything to happen, you require energy, goddess energy, divine energy, right? We call it Devi Shakti. You want to learn which Devi does this manifestation? You want to learn the mantra to positively influence it? You have to learn to protect yourself from negative thoughts. How many wants to learn? Raise your hand. देखो, कुछ भी होने के लिए आपको ताकत की जरूरत होती है, शक्ति की जरूरत होती है। और कुछ भी मैनिफेस्ट होने के लिए, कुछ भी अपीयर होने के लिए
आपको लगती है दिव्य शक्ति, देवी की शक्ति। हाँ, आप जानना चाहते हो कौन सी देवी है जो ये मैनिफेस्टेशन करती है, हाँ, और हमें नेगेटिव थॉट से भी बचाए। जानना चाहते हो कैसे हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पॉजिटिव के लिए? कितने लोग जानना चाहते हैं? हाथ उठाओ। मस्त कहानी है ना, हमारे जीवन में यही घट रहा है, हम समझ नहीं पा रहे। हाँ, सच अ नाइस स्टोरी ना, इन आवर लाइफ एवरी डे दिस सेम थिंग इज हैपनिंग, ओनली वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड इट। करेक्ट? हाँ, सो यू वांट टू टेक कंट्रोल, राइट? हाँ, आप चाहते हो कि आपके हाथ में वो कंट्रोल रहे। हाँ, कैसे रहेगा? हाँ, तो उसका एक ही जवाब है, देयर इज ओनली वन आंसर टू इट, इट इज देवी कवचम। हाँ, जवाब है देवी कवचम। हाँ, आज 4th डे है, मैं देवी कवचम सीख रहा हूँ आर्ट ऑफ लिविंग में, त्रिलोक नाथ जी से। बहुत जबरदस्त टीचर है। मैं ये कहानी इसीलिए सुनाई आपको कि आप भी सीखो। हाँ, सो आई एम लर्निंग देवी कवचम इन आर्ट ऑफ लिविंग। माय टीचर्स नेम इज त्रिलोक नाथ जी, इज एन अमेजिंग टीचर and you all must learn. That's the reason I said this story. So yes, that is it. And today is the 4th day. I couldn't attend in the morning because of course the follow-up was there. I wanted to meet you all beautiful souls. हाँ, तो इवनिंग वाला मैं अटेंड करूंगा। हाँ, तो आप लोग भी करो। देखो, आजकल मैनिफेस्टेशन गुरु इतना सब आ रहे हैं ना वेस्ट में, पॉजिटिव थिंकिंग आ रहा था, ये आ रहा था, वो आ रहा था। But we have it from thousands of years. There are so many positive thinking gurus now, manifestation gurus. You know, when positive thinking became a new hype, so many people who wrote the book on positive thinking committed suicide because something was missing. But in our culture, that something is not missing. So please join the program. हाँ, मैंने ना 7 साल पहले त्रिलोक जी से देवी कवच सीखा था। क्या बात? और मैं अभी रोज करती भी हूँ। मैं बॉम्बे में जब रहती थी, अभी मैं लोनावाला शिफ्ट हो गई हूँ 4-5 साल से। तो वो जो उसके बैकग्राउंड में स्टोरी सुनाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। तो एक मैं त्रिलोक जी से काफी कनेक्टेड थी, उनसे व्हाट्सएप चैट भी होता था। वे मॉर्निंग में ना 4 बजे लिया करते थे रिपीटेशन। यहाँ पे लोनावाला शिफ्ट हुई तभी भी मॉर्निंग में 4 से 6 बजे तक होता था, 2 आवर्स का। कि ब्रह्म मुहूर्त में कोई उठ के ऐसे कुछ कर सकते हैं, तो आई विल डू दैट फॉर यू ऑनलाइन। तो अभी भी कुछ करवाते हैं क्या वे? अदरवाइज आई विल अभी तो मैं तो एक्चुअली सरोज जी, मैं खुद नहीं करने वाला था। मेरी बहन ने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया, पैसे पे कर दिए। तो बीइंग अ गुजराती फिर मैंने अटेंड करना शुरू किया। लेकिन जैसे अटेंड किया मैंने देखा, अरे बाप रे, ये तो कितना अमेजिंग है, और मैं कितने सालों से ये अवॉइड कर रहा हूँ। मैंने वो इतना अच्छा सेशन था ना, मैं बोल नहीं सकती हूँ। बहुत मुझे इतना इम्प्रेस किया, और मैं एवरी डे अभी देवी कवच करके ही बाहर निकलती हूँ। और सबके लिए जो भी वेल विशर्स है मेरे, किसी की बीमारी हो जाती है कुछ भी, मतलब उन्होंने इतना एक्सप्लेन करके इतना इजी कर दिया था ना मेरे लिए। सच्ची इट्स ब्लेसिंग्स फॉर मी, आई कैन से। अच्छा, एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ। आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग। दिस देवी कवचम literally means Devi will protect you from all 10 directions, all 4 elements: air, fire, water, wind, earth. Sorry, all 4 elements. It will protect you. You'll be surprised how much protected you will be. So ये देवी कवचम सिर्फ मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं है, वो एक्चुअली आपको प्रोटेक्ट करेगी, 10 दिशाओं से आपको प्रोटेक्ट करेगी देवी। और इतना ही बस नहीं है, तो 4 एलिमेंट्स जो होते हैं धातु, जैसे अर्थ, वाटर, फायर, एयर, उनसे भी प्रोटेक्ट करेगी। और इतना भी बस नहीं है, तो वो आपको हील भी करते हैं। जैसे कि अगर मैं सुगंध लेता हूं, तो कोई शक्ति है जिसके वजह से मैं सुगंध ले पाता हूँ, सांस ले पाता हूँ। अगर आप स्थिर बैठ जाओ, फिर भी आपके दिल की धड़कन चल रही है। दिल की धड़कन चलने के लिए ताकत लगती है, एनर्जी लगती है। वो एनर्जी क्या है? देवी शक्ति ही है। और ये जो हमारे पूरे शरीर में है ना, अलग अलग देवियां है, जिसके वजह से अलग अलग काम होता है। अगर मैं हाथ उठाऊं, मुंह से बात करूं, सबके लिए शक्ति लगता है। ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, बराबर है। तो हर एक एनर्जी जो है, हर एक शक्ति है, वो अलग फॉर्म है देवी का, और सबके लिए एक मंत्र है जो त्रिलोकनाथ जी सिखाते हैं। अगर आपको आंखों में प्रॉब्लम है, आंखों का मंत्र है। और लंबा मंत्र नहीं है, सिर्फ 3-4 शब्दों का मंत्र है।
फिर अगर आपको कान में प्रॉब्लम है, हृदय में प्रॉब्लम है, पैरों में प्रॉब्लम है, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है, आपको एक मंत्र वहां का मिल जाएगा जो आपको सिर्फ 5 बार बोलना है। हाँ, 10 सेकंड भी नहीं लगते वो 5 बार बोलने के लिए। 10 सेकंड बहुत कम हो गया, 15-20 सेकंड लगते हैं। हाँ, तो वो भी आप कर सकते हो। आपको इतना कुछ मिलेगा देवी कवचम में जिसका मतलब आप लिमिट नहीं है। इतनी जगह से, इतनी तरह से देवी कवचम आपको प्रोटेक्ट करेगी। कवचम, कवच मीन्स द शील्ड। हाँ, आपको शील्ड जो मूवीज में आजकल दिखाते हैं, ऐसा शील्ड बना देते हैं, फिर बाहर का कोई भी वेपन अंदर आ नहीं पाता, वो शील्ड बन जाएगा आपके अराउंड। हाँ, और आप चाहोगे उसके अराउंड भी शील्ड बन जाएगा। तो ये बहुत पावरफुल ये है, तो सीखना ही सीखना है, बहुत ही सीखना ही पावरफुल, सीखना है। बहुत वो तो मतलब देवताओं को भी नसीब नहीं था, वो मार्कंडेय ऋषि ने इनको दिया था। तो ये स्टोरी फॉर्म में इतना सुंदर, और वो त्रिलोक जी करवा रहे हैं, तो मतलब बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी। जिसने भी नहीं किया है, दे मस्ट डू। द मनी इज लाइक डोनेशन टू अवर हाँ, गुरु एंड जी। इतना प्रोटेक्शन के लिए तो 1500 इज हाँ, नथिंग। हाँ, या नथिंग। हाँ, ये सोचना भी डोनेशन है नहीं है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कितना पैसा स्पेंड करते हाँ, हैं, तभी सोचते हैं ये डोनेशन में जाएगा या इसके पॉकेट में जाएगा, ये इससे कहीं करेक्ट, स्विट्जरलैंड घूमने ना चला जाए मेरे पैसों से। नहीं, एक या इट इज अ सर्विस। आपने पैसा दिया, अभी वो पैसा उसका हो गया, वो जो चाहे करे। हाँ, हाँ, तो ये बिल्कुल मत ठीक सोचो कि अरे तो डोनेशन 1500 क्या डोनेशन होता है। अब 15,000 दो, 15 लाख दो तो मैं बोल सकता हूँ ये डोनेशन है। 1500 को आप अगर डोनेशन बोलते तो आप अपनी वैल्यू कम कर रहे हो। आप समझ रहे हो? हाँ, मैंने दान दिया, कितना दिया? 1500। कोई इज्जत नहीं करेगा। हाँ, तो पैसे के बारे में आप ऐसे सोचो, लॉजिकली सोचो। आप डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में कितना पैसा वेस्ट करते हैं। हाँ, तो मनी इज नॉट अ थिंग। मैं तो कहता हूँ कि आप ज्यादा डोनेट करो, 1500 करके खुद का ये मत करो। हाँ, डोंट डिसवैल्यू योरसेल्फ बाय सेइंग 1500 का डोनेशन कर नथिंग। हाँ, सो करो। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज डू रजिस्टर, वेरी पावरफुल। जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा। देवी कवचम मैंने जब सुना, मुझे लगा ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मेरे से नहीं होगा। लेकिन 3 दिन मैंने किया, आज शाम को मेरा 4th डे होगा। 95% में बोल पा रहा हूँ। 95% ईजी है, 5% के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है। हाँ, वो तो हर चीज के लिए प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। आप बोलो कि मुझे बिना प्रैक्टिस के चाहिए, तो वो तो नहीं है। लेकिन द गुड थिंग इज कि वो प्रैक्टिस करवा के लेते। हाँ, तो मुझे लगता है वो काफी अच्छा है कि हम प्रैक्टिस करें ना करें, लेकिन वो सामने बैठे होते तो प्रैक्टिस हो जाता है, तो वो एक अच्छा है।